Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up questions from CMAT examination from previous year for logical reasoning section. And if you've not connected with me on Telegram, you can join the Telegram group CAT-MBA, and you can also message me on Telegram directly at ADITYAKT. Let's just start. The first question is, identify odd group of letters CE, IK, SV, FH, UW. So this is the group of letters CE. में क्या कनेक्शन है C and then D then E. So E is +2, C से 2 लेटर्स आगे गए फ्रॉम I to K. I K में भी यही है क्या I J K, डेफिनेटली 2 लेटर्स आगे गए. SV T U V तो 3 लेटर्स आगे गए हैं, डेफिनेटली दिस इज लुकिंग ऑड, बट बाकी को भी चेक कर लेते हैं. F H E F G H 2 लेटर्स आगे गए. देन UW में भी सेम कहानी है, UVW 2 लेटर्स आगे गए, डेफिनेटली दिस इज ऑड वन आउट, SV is odd one out. That will be the answer, option A. Is it clear? Okay. Next question देखते हैं. Select the pair which has same type of relationship like barometer and pressure. So barometer is used. Barometer is the instrument. It is the instrument that is used to measure atmospheric pressure. So basically, we have to identify the relationship where we are using some instrument to identify some physical quantity. First option is force and kg. So force is obviously a quantity, it is not an instrument as such, or so definitely A option नहीं होगा. Option B कह रहा है Richter scale and heat. Richter scale is used to measure the magnitude of an earthquake. कितना तीव्रता क्या थी एक earthquake का, strength क्या था. So that is magnitude is measured via Richter scale. Definitely heat is not measured. So B is also not correct. C is saying weighing scale and meter. Weighing scale is used to measure weight only, so C is also not correct. And D saying thermometer, which is used to measure temperature, hence D will be the answer. Very easy question. Next question देखते हैं. So the question is consisting of a statement that is followed by 2 arguments, and we have to decide which of the arguments is a strong argument and which is a weak argument. Statement कह रहा है women should be allowed to go out alone. That is what the statement is saying, that women should be allowed to go out alone. Argument number 1 is saying yes, they should be. And what is the logic? Logic क्या है इसके बाद का? Statement का argument क्या है? Argument is saying that it would make them independent and safe. If women are allowed to go out alone, it would make them independent and safe. Seems good, seems fair, but is it a strong argument? Because it is showing something that it will make them independent and safe. Going out alone. ठीक है? How? Independent slightly maybe, but safe how? Safe कैसे feel कराएगा? If women are allowed to go out alone, how will it make sure that they are feeling safe? That is not given in the statement. तो argument number 1 is not a strong argument because हमें reasoning नहीं given है. Statement जो कह रहा है, अगर reasoning given होता तो एक strong backing होता और उसके बाद we could have said that the argument is strong, but right now reasoning given नहीं है और safe किस basis पे कह रहे हैं, that we do not know. So definitely the argument is not a strong argument. Argument number 2, no, they are under the protection of their male affines and they should be with them always. ठीक है, they are under the protection of their male affines and they should be with them always. हमेशा ही ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसा हम स्टूडेंट आर्गुमेंट का क्वेश्चन करेंगे, हमारा खुद का जो बायस है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट डू वी थिंक अबाउट इट. जो आर्गुमेंट गिवन है हमें उनको स्ट्रेंथ के बेसिस पे चेक करना है. ठीक है, सो वेदर वी फाइंड द आर्गुमेंट राइट और रॉन्ग इज इमैटेरियल. whether the argument is a strong argument or a weak argument, in support or against, that is important. ठीक है, सो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो डेफिनेटली सेकंड वाला आर्गुमेंट जो हमारा कह रहा है, ये कह रहा है नो, दे आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर मेल अफाइंस एंड दे शुड बी विद देम ऑलवेज. अगेन सेम रीजनिंग कि यहां पे भी क्यों ऐसा होना चाहिए, दैट इज नॉट गिवन. द वाई इज नॉट गिवन. ठीक है, वाई इज नॉट गिवन. अगर पहले वाले में हाउ मेंशन नहीं था, दूसरे वाले में वाई मेंशन नहीं है, कि ऐसा क्यों होना चाहिए. सो दैट इज वाई सेकंड आर्गुमेंट इज ऑल्सो अ वेरी बेसलेस आर्गुमेंट एंड दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नॉट स्ट्रॉन्ग. तो आंसर विल बी बोथ आर वीक आर्गुमेंट्स. बोथ आर्गुमेंट्स आर वीक. ठीक है, राइट और रॉन्ग नहीं डिस्कस करना है हमें, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है, ये डिस्कस करना है. Next question. Next is about the statement and assumption, and we have to find out which assumption is implicit. So basically any assumption that is the foundation behind a statement, that should be implicit. That should be implicit. ठीक है, statement हमारा कह रहा है some people believe in the existence of God. Some people believe in the existence of God. Argument number 1 is saying not everything in this world is created by humans. What does that mean? This argument means that not everything in the world is created by humans. यानी कि there are some things
नॉट क्रिएटेड बाई ह्यूमंस, एटलीस्ट ये आर्ग्यूमेंट इतना तो कह रहा है. एंड इफ देयर आर सम थिंग्स दैट आर नॉट क्रिएटेड बाई ह्यूमंस, देन हु क्रिएटेड देम? So there must be some creator. Some creator must be there. And that creator could be God. Some people may believe in that way. तो argument number 1 हमारा जो है that is logically following. कि अगर argument number 1 हमारा कह रहा है not everything is created by humans, so there must be some other creator. And that creator could be a God. So some people are believing in the existence of God. So for some people to believe in the existence of God, there must be this argument implicit. Implicit, isn't it so? और ऑल्सो एक और चीज हम कर सकते हैं, निगेशन करके भी चेक कर सकते हैं. निगेशन क्या? कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. सो इफ एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, देन वी डू नॉट नीड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अदर क्रिएटर, बिकॉज द क्रिएटर इज ह्यूमन ओनली. Isn't it so? सो निगेट हो जाता है हमारा स्टेटमेंट. और अगर आर्ग्यूमेंट को निगेट करके हमारा स्टेटमेंट निगेट हो जाता है, यानी कि फाउंडेशन खत्म हो गई उसकी, सो डेफिनेटली दैट आर्ग्यूमेंट इज इम्प्लिसिट, या दैट आर्ग्यूमेंट इज नेसेसरी फॉर द स्टेटमेंट टू एग्जिस्ट. एंड हेंस फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट तो अपना सही है. दैट शुड बी इम्प्लिसिट बिहाइंड द स्टेटमेंट. क्या ये बात समझ में आती है? सेकंड आर्गुमेंट कहता है ह्यूमन बीइंग्स आर इम्परफेक्ट. ठीक है, परफेक्ट नहीं है, हर काम को परफेक्टली नहीं करते, या परफेक्ट नहीं है, सब कुछ नहीं है उनके अंदर. बट अगर सब क्वालिटीज उनके अंदर नहीं है, तो व्हाट कैन वी डिड्यूस फ्रॉम इट? कैन वी डिड्यूस दैट देयर शुड बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? नो, वी कैनॉट. वी कैनॉट, बिकॉज कैसे इससे डिड्यूस करोगे कि गॉड का एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है? या फिर ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम आर्गुमेंट को निगेट करने की कोशिश करें, ह्यूमन बीइंग्स आर इम्परफेक्ट की बजाय कहें ह्यूमन बीइंग्स आर परफेक्ट, then what? In both the cases we cannot deduce और think about कि existence of God कैसे connected है human beings के perfect या फिर imperfect होने से. ठीक है, एटलीस्ट लॉजिकली कनेक्टेड नहीं है. तो डेफिनेटली सेकंड आर्ग्यूमेंट इज नॉट इम्प्लिसिट कि ह्यूमन बींग्स का इम्परफेक्ट होना ये शो नहीं करता दैट देयर शुड बी अ गॉड. तो सेकंड आर्ग्यूमेंट इज नॉट इम्प्लिसिट, फर्स्ट इज इम्प्लिसिट आर्ग्यूमेंट. ऑप्शन ए इज द आंसर. इज इट क्लियर? ठीक है. हाँ, कोई ये कह सकता है कि सर गॉड कैन बी अ परफेक्ट बीइंग. बिल्कुल हो सकता है, गॉड इज अ परफेक्ट बीइंग, गॉड कैन बी अ परफेक्ट बीइंग. लोग क्या बिलीव करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट. बट क्या ह्यूमन बींग्स के इम्परफेक्ट होने से वी कैन कैजुअली रिलेट, कॉजली रिलेट कर सकते हैं, या ये कॉज हो सकता है कि, या फिर ये इफेक्ट हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स इम्परफेक्ट है इसलिए एक परफेक्ट बीइंग का होना इंपॉर्टेंट है? इज इट relevant? I mean, can this be connected by the cause? No, we cannot. So that is why argument second हमारा implicit होना जरूरी नहीं है. ठीक है, it can be an argument but it is definitely not an assumption. ठीक है, assumption नहीं है, possibility हो सकता है, assumption definitely नहीं है. ठीक है, next question. Next is again about statement and two conclusions that are following it. Statement कह रहा है in a one day match total runs made by a team were 200 out of which 160 runs were made by spinners. So 160 runs were made by spinners. Conclusion number 1 कह रहा है 80% of the team consists of spinners. And conclusion number 2 कह रहा है the opening batsmen were spinners. So 80% of the team consists of spinners. On what ground? On what ground can we conclude this? हमारा स्टेटमेंट सिर्फ इतना कह रहा है कि 200 runs were made in the match out of which 160 यानी कि 80% runs were made by spinners. पर 80% runs spinners ने बनाया, इसका ये डेफिनेटली कंक्लूजन नहीं निकाल सकते 80% of the team consists of spinners. So this is false. सेकंड, ओपनिंग बैट्समैन व स्पिनर्स, ये भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि क्या स्कोर था, 160 पे कितने विकेट्स डाउन हो चुके थे, दैट वी डू नॉट नो. सो हो सकता है ये जो 160 रन है ये बाद वाले बैट्समैन ने बनाए हो. तो डेफिनेटली सेकंड इज ऑल्सो नॉट द राइट कंक्लूजन. तो नीदर फॉलोज, ऑप्शन डी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. So there are two statements and we have to identify कि whether they are cause and effect, they are connected by cause and effect, or they are effects of independent cause, or they are effects of some common cause. Statement number 1 कह रहा है there is an increase in the water level of all the water tanks supplying drinking water to the city in the last fortnight. हुआ क्या है? Increase in the water level हुआ है to all the water tanks supplying drinking water to the city in the last fortnight. और second statement कह रहा है most of the trains were cancelled due to water logging on the tracks. तो वाटर लॉगिंग हुआ है ट्रैक्स पे, और फर्स्ट कह रहा है कि वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है सारे के सारे वाटर टैंक्स का. सो डेफिनेटली दिस इज कनेक्टेड, बोथ आर समहाउ कनेक्टेड. ठीक है, कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप हो सकता है क्या? क्योंकि ट्रेन में वाटर लॉगिंग हुआ है, ट्रेन के ट्रैक्स में वाटर लॉगिंग हुआ है, दैट इज वाई देयर इज इंक्रीज इन द वाटर लेवल ऑफ ऑल द वाटर टैंक्स. नॉट कनेक्टेड दैट वे, क्योंकि इंक्रीज हुआ है वाटर लेवल ऑफ टैंक्स में इसलिए ट्रेन कैंसिल हो गई हैं. क्या ऐसा कनेक्शन हो सकता है? ये भी कनेक्शन नहीं हो सकता, यानी कि कॉज इफेक्ट का कनेक्शन तो नहीं है. दैट कनेक्शन इज नॉट देयर. बट दोनों केसेस में क्या हुआ है? एक केस में ट्रेन कैंसिल हुई है बिकॉज देयर वाज वाटर लॉगिंग ऑन द ट्रैक्स, और फर्स्ट वाले में क्या हुआ है? देयर इज इंक्रीज इन द वाटर लेवल ऑफ द टैंक्स. सो प्रोबेबली वी डू नॉट नो फॉर श्योर, बट प्रोबेबली देयर कुड बी अ कॉमन कॉज. एक कॉमन कॉज का पॉसिबिलिटी है. मे बी देयर वॉज हैवी रेन्स, बारिश हुई अच्छी खासी
जिसकी वजह से दोनों हुए। तो डेफिनेटली कॉमन कॉज की पॉसिबिलिटी है, सो वी कैन से बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ द सेम कॉमन कॉज। हमेशा याद रखना है कभी भी ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा प्रेफरेंस होना चाहिए कि क्या कॉज और इफेक्ट से हम कनेक्ट कर सकते हैं दोनों स्टेटमेंट को। अगर कर सकते हैं तो कॉज और इफेक्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। इफ वी कैन नॉट कनेक्ट देम बाय कॉज एंड इफेक्ट देन वी हैव टू थिंक ऑफ अ कॉमन कॉज इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉमन कॉज। ठीक है, तब तक निगेट नहीं करेंगे जब तक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ कॉमन कॉज देन वी विल सी देम एज इफेक्ट ऑफ द कॉमन कॉज। अगर कॉमन कॉज पॉसिबल नहीं है देन मे बी देयर कैन बी द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉजेस, तब फिर हम उस डायरेक्शन में मुड़ेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज देयर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच स्टेटमेंट इज ट्रू आउट ऑफ द गिवन। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है इफ सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इज ट्रू देन सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट इज ऑल्सो ट्रू। क्या कह रहा है? इफ सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, यहां से क्या पता चलता है कि अगर एक हमारा स्टूडेंट का ग्रुप है और एक ग्रुप है हमारा इंटेलिजेंट का, देन इट इज गिवन, स्टूडेंट्स को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेलिजेंट को आई से, दैट सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। तो व्हाट वी नो फॉर श्योर दैट देयर इज सम कॉमन ग्राउंड इन बोथ, यानी कि सम स्टूडेंट्स आर डेफिनेटली देयर विच आर इंटेलिजेंट, दैट इज फॉर श्योर। बट इस पार्ट के लिए तो वी आर श्योर, वी आर सर्टेन, बट फॉर दिस पार्ट वी आर नॉट सर्टेन। I mean, we do not know whether there could be some students which are not intelligent. We do not know. We do not know. So we cannot definitely say that. और हमारा second statement वही कह रहा है कि then some students are not intelligent is also true. No, we cannot definitely say that. यहाँ से दो conclusion निकल सकते हैं। पहला conclusion could be, first conclusion could be that all students are intelligent. That is possible. If some are intelligent, all students can also be intelligent. एक सेकेंड, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, दैट कुड बी पॉसिबल केस। या फिर सेकंड हमारा बन सकता है कंक्लूजन, और सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट। तो दैट वाला स्टेटमेंट इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबल तो है बट डेफिनेट नहीं है। तो या तो सारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हो गए या सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट। तो ईदर इज पॉसिबल एंड दैट इज वाई दैट स्टेटमेंट अलोन दैट सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट इज नॉट ट्रू फॉर श्योर। तो पहला वाला तो अपना फॉल्स हो गया। सेकंड कह रहा है ऑल लॉजिशियंस आर मैथमेटिशियंस एंड दैट इज ट्रू। सो इफ ऑल लॉजिशियंस आर मैथमेटिशियंस, यानी कि लॉजिशियंस का सेट इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ मैथमेटिशियंस। ठीक है, ऑल लॉजिशियंस आर मैथमेटिशियंस। एंड देन कंक्लूजन कह रहा है सम नॉन मैथमेटिशियंस आर नॉट लॉजिशियंस विल बी ट्रू। तो एनी नॉन मैथमेटिशियन विल बी आउटसाइड दीज टू सेट्स, और एनी नॉन मैथमेटिशियन विल नॉट फॉल इनसाइड द लॉजिशियंस का ग्रुप, बिकॉज लॉजिशियंस का सेट तो पूरी तरह से सबसेट है मैथमेटिशियंस का। तो डेफिनेटली एनी नॉन मैथमेटिशियन विल नॉट बी अ लॉजिशियन। तो दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑप्शन डी इज द आंसर। फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Abhishek, Binita, Manisha, Hari, Vaishali and Gaurav are sitting around a circular table, not necessarily in the same order. Some of them are facing the center and remaining are facing away from the center. Now, any such question, हमें क्या करना है? We have to first identify one or two statements जहाँ से कि हम कुछ conclusion draw कर पाएं, यानी कि कुछ possibility certainty draw कर पाएं, ताकि हम position कर पाएं। There are 6 students and who are sitting around a circular table. कुछ लोग outside face कर रहे हैं centers और कुछ लोग face कर रहे हैं center की तरफ, in the, ठीक है, inside face कर रहे हैं circular table में। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है गौरव सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बिनीता। नाउ द थिंग इज कि अगर कोई टूवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहा है, देन इन दैट केस लेफ्ट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और अगर आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहा होगा तब फिर लेफ्ट होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वेदर बिनीता इज फेसिंग इनसाइड टूवर्ड्स द सेंटर और फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, तभी हम उसका लेफ्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो अभी इस स्टेटमेंट को होल्ड पे रखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है ओनली अभिषेक एंड बिनीता फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। नाउ वी नो दैट बिनीता इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सो नाउ वी कैन डेफिनेटली से देयर आर 6 स्टूडेंट्स, so let us say these are the 6 students, 5 and 6. Now Binita is facing away from the center, let us say this is Binita and Gaurav sits immediately left of Binita. So since Binita is facing away, so her left will be on this direction, this will be the left and Abhishek will be right here. Oh sorry, Gaurav will be right here. Abhishek तो away from the center face कर रहा है, Gaurav will be right here. And since only Abhishek and Binita are facing away from the center, so Gaurav तो towards the center face कर रहा होगा, face कर रहा होगा center को. Third statement, Vaishali and Hari are sitting next to each other. Okay.
तो वैशाली एंड हरी आर एडजेसेंट, पड़ोसी पड़ोसी हैं. देर आर टू पीपल बिटवीन हरी एंड गौरव. तो गौरव और हरी के बीच में देर आर टू पीपल. नाउ वी कैन सी दैट देर आर टोटल 6 पीपल. तो इफ गौरव इज हियर 1 2, किस डायरेक्शन में ये नहीं गिवन है, बट हरी को अगर हम इस पोजीशन पे बिठाते हैं, सो वेदर वी काउंट फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड, देयर विल बी 2 पीपल ओनली. सो दैट इज इमटेरियल. सो डेफिनेटली हरी की पोजीशन पे हमारी फिक्स होगी और हरी मस्ट बी फेसिंग इनसाइड टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा डन हो गया. ओके, दिस इज ऑल्सो डन. एंड वैशाली एंड हरी आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, बट यहाँ से अभी हम श्योरली नहीं कह सकते कि वैशाली कौन से डायरेक्शन में बैठी हुई है. ठीक है, सो अभी होल्ड पे रखते हैं. अभिषेक इज द नेबर ऑफ बोथ मनीषा एंड गौरव. अभिषेक इज नेबर ऑफ बोथ मनीषा एंड गौरव. सो डेफिनेटली अभिषेक मस्ट बी सिटिंग हियर एंड मनीषा must be sitting here, and Abhishek is facing outside, Manisha is facing inside. So now we definitely know that Vaishali must be here and facing towards the center. So we've got all the positions. If Hari and Abhishek interchange their places, so now if Hari and Abhishek interchange their places, तो अभिषेक की जगह हरी आ जाएगा और हरी की जगह अभिषेक आ जाएगा. Okay, and Abhishek will be facing away from the center and Hari will be facing towards the center. Then question is saying, having same facing direction, that is also mentioned. Then who among the following sits to the immediate left of Abhishek? To the immediate left of Abhishek. तो अभिषेक का left कहाँ पे है? In this direction. So Vaishali is on the immediate left of Abhishek. So A option, Vaishali will be the answer. Is it clear? ठीक है. Next question. A 3x3 matrix is filled with numbers from 31 to 39 above according to the following rules. Now the rules are given. First is saying that 38 is above 39 and to the right of 32. Now after the statements, it is saying that above and below mean that they are in the same column, while left and right mean that the numbers are in the same row. Okay. Again यहाँ पे भी हमें यही करना है. बिठाने से पहले we need to identify some statements जहाँ से कि we can identify at least 1 or 2 cells का exact location. ये तो हमें नहीं पता exactly. ठीक है. So this is row 1, row 2, row 3, column 1, column 2, column 3. ठीक है, लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है क्योंकि बट फिर भी समझने के लिए. ठीक है, क्योंकि रोज आर हॉरिजॉन्टल, कॉलम्स आर वर्टिकल. 38 is above 39, so we know that 38 and 39 are in the same column and to the right of 32. 38 is to the right of 32. 32 के राइट में है 38, यानी कि 32 और 38 सेम रो में है. 33 is to the right of 37, तो 37 के राइट में है 33. And above 39, so 33 is also above 39, यानी कि 33, 38, 39, all these three are in the same column. 33, 38 और 39 अगर सेम कॉलम में है तो थिंक अबाउट इट, 39 फिर कहाँ पे होगा? लास्ट वाली रो में होगा, क्योंकि 33 भी उससे ऊपर है, 38 भी उससे ऊपर है, यानी 39 अपना लास्ट रो में हुआ है. ये तो पक्की बात है, कंफर्म है. ओके, देन इट इज सेइंग दैट 39 इज टू द लेफ्ट ऑफ 34, इज टू द लेफ्ट ऑफ 34. तो डेफिनेटली 39 हमारा लास्ट वाले कॉलम में तो नहीं हो सकता है. इजंट इट सो? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है. और अगर 39 लास्ट वाले कॉलम में नहीं हो सकता है, 39 से ऊपर 38 और 33 है, तो डेफिनेटली 39 कहाँ पे होगा? और 39 के लेफ्ट हैंड साइड में भी, बिकॉज 39 जिस कॉलम में है उससे लेफ्ट वाले कॉलम में 32 और 37 है, तो डेफिनेटली 39 मस्ट बी हियर ओनली फॉर श्योर. इज इट क्लियर? ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया अपना. और 39 हमारा इज टू द लेफ्ट ऑफ 34, तो 34 की पोजीशन भी क्लियर हो गई. 34 मस्ट बी हियर. 32 is to the left of 35. 32 is to the left of 35. Okay. 35 के लेफ्ट में है 32. 37 is above 36 and 32. अब 37 के बारे में क्या कहा है कि दिस इज above 36 and 32. And we see 32 here as well. So definitely 37 is above 32. So 32 must be here. And then 38 must be here, and then 37 must be here. 36 और 32 तो बिलो है 37 के, और 37 के राइट में है 33. तो इतना पोजीशन तो हमारा फिक्स हो गया. ठीक है.
फिर क्या है 32 के राइट में है 35, बिकॉज 32 लेफ्ट में है, तो 35 मस्ट बी हियर ओनली, एंड 31 इज अबाउट 35, सो 31 की पोजीशन भी फिक्स हो गई। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स इन द मिडिल रो। मिडिल रो में नंबर्स क्या है 33, 38 एंड 39, सो 8 + 9 7 + 3, एक सेकेंड, मिडिल रो है, कॉलम है, ये तो कॉलम है, दिस इज द रो 32, 38 एंड 35, सो लास्ट में आएगा 5, आंसर इज 105, 90 + 15 105, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग। सो वी बीन गिवन 4 नंबर्स और हमें आइडेंटिफाई करना है ऑड नंबर क्या होगा। नंबर्स गिवन है 143, 168, 225 and 195. Now 2 numbers are there which are multiples of 5 और एक हमें इवन नंबर गिवन है। कैसे हम इनको कंबाइन कर सकते हैं? व्हाट शुड बी द करेक्ट रीजनिंग बिहाइंड दीज नंबर्स? ये तो नहीं कह सकते देखो 3 नंबर हमारे ऑड हैं, एक इवन है, तो इवन ऑड हो सकता है, मतलब कि इवन नंबर कुड बी द ऑड वन, दैट कुड बी देयर, बट दैट इज नॉट अ वेरी सेम लॉजिक, देयर मस्ट बी सम अदर लॉजिक प्रॉबेबली। 143 को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या 168? 143 is 144 minus 1. Can we write this way? 144 यानी कि 12 का स्क्वायर -1, और 168 हो गया 169 -1 यानी 13 स्क्वायर -1, और 225 तो डायरेक्टली 15 का स्क्वायर है, और 195 क्या है 14 का स्क्वायर 196 -1। तो ऑल द अदर नंबर्स 195, 168 and 143, these are some perfect square -1, but 225 is actually a perfect square, so that is the number odd one out. Option C will be the answer. Okay, clear? ठीक है। Next question, find the missing term. So the terms are given: Z, then A 5, Y 4, B, X, C 6 and W 3, D. So the first letter is Z, then Y, then X, then W. So next should be V, because हम एक एक डिक्रीज करते जा रहे हैं, और सेकेंड लेटर हमारा आ रहा है A, B, C, D, so next should be E. So V and E should be there. एक ही ऑप्शन में आ रहा है, so clearly option B will be the answer. और बाकी जो नंबर गिवन है 5, 4, 6, 3, इसमें कोई ऐसा सच ऑर्डर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बट ये ज़रूर क्लियर हो रहा है हमें कि पहले सेकेंड लेटर के बाद में आया है, देन फर्स्ट, देन सेकेंड, देन फर्स्ट, सो नेक्स्ट इट शुड बी सेकेंड के बाद में, तो BE1 विल बी द आंसर। अगर कोई और ऑप्शन भी होता तो फिर हम ये लेटर का भी, नंबर का भी देखते हैं रीजनिंग, बट एज सच यहाँ पे नंबर का रीजनिंग नंबर कौन सी पोजीशन पे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लेटर से ही हमारा काम हो जा रहा है। क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे कि वी और ई साथ में आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 23rd April 1995 इज अ ट्यूजडे, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 23rd April 1998? 1998 पे कौन सा दिन होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करते हैं कि 1998 से 1988 से 1995 पे जाएंगे, तो कितने दिन हमें आगे जाना पड़ेगा? 1988 we are talking about 23rd April. Clearly 1988 is a leap year, but 23rd April हमारा 29th Feb के बाद में आ रहा है, तो एक्स्ट्रा डे का काउंटिंग नहीं आएगा। तो 1998 से जब हम 1988 से 1989 में जाएंगे, तो क्लियरली लीप ईयर का कंसिडरेशन हमें नहीं करना पड़ेगा। 88 से 95 तक कितने ईयर्स ज़्यादा हैं? हम 7 ईयर्स आगे जाना है, एंड इन दीज 7 ईयर्स वी विल हैव ओनली 7 ईयर्स में 7 ऑड डेज आएंगे, 7 एक्स्ट्रा डेज आएंगे, 52 वीक्स होंगे, 7 एक्स्ट्रा डेज होंगे, बट बीच में एक हमारा ईयर आएगा 1992 विच इज अ लीप ईयर, तो उसके लिए 1 डे एक्स्ट्रा हमें ऐड करना पड़ेगा। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 1988 लीप ईयर तो है, लीप ईयर है, बट 29 फेब के बाद की डेट के लिए हम बात कर रहे हैं, सो दैट इज वाई यहाँ का लीप ईयर का कंसिडरेशन हमें नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज जो एक्स्ट्रा दिन है वो ऑलरेडी निकल चुका है 23rd अप्रैल को, ठीक है। तो टोटल 8 एक्स्ट्रा डेज आएंगे, और 8 एक्स्ट्रा डेज का मतलब क्या हुआ कि +1 7 से डिवाइड करोगे, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा होगा, एक दिन एक्स्ट्रा होगा, और एक दिन हमारा एक्स्ट्रा आएगा जब हम 1988 से 1995 पे जाएंगे, बट हमें जो डे गिवन है दैट इज गिवन फॉर 1995 एंड दैट इज ट्यूसडे। तो अगर मैं 1995 से 1988 पे जाना है, सो वी हैव टू सबट्रैक्ट 1, यानी कि ट्यूसडे से एक दिन पहले वाला दिन होगा, मंडे विल बी द आंसर। ऑप्शन ए, मंडे विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
In a certain code language, if the word beautiful is coded as BFLTAEIUU, then how is the word technical coded in that same language? तो ब्यूटीफुल का कोडिंग किया है BFLTAEIUU. अब B अपनी पोजीशन पे है, लास्ट में L आ रहा है एक्चुअल लेटर में, बट कोडिंग में U आ रहा है. अगर कोडिंग में ऑब्जर्व करें तो BFLT को साथ में रख दिया, फिर AEIUU. तो क्या स्पेशल है BFLT के बारे में? BFLNT, all these are consonants. And they are also arranged alphabetically. Similarly, AEIUU, these are also all are vowels and they are arranged in the alphabetical order. यानी कि टेक्निकल में से भी हमें कॉन्सोनेंट्स को सेपरेट करना पड़ेगा और वॉवल्स को सेपरेट करना पड़ेगा. तो कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है टेक्निकल में? T है, C है, H है, N है, C है, L है. तो T, C, H, N, C, L, these are consonants और वॉवल्स है हमारे E, I और A. सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे. सो देयर विल 2C, देन H, L, N, T. लास्ट ऑप्शन ही क्लियरली आ रहा है. इतने से ही खत्म हो गया. अदरवाइज फिर बाद में वॉवल्स को अरेंज करते हैं तो AEI. तो दिस विल बी द प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर कोडिंग ऑफ द वर्ड. इज इट क्लियर? ठीक है. Next question, given below is the diagram which represents various sports played by the students. Based on the diagram, find the number of girls who neither play hockey nor play football. So hockey players के लिए there is a triangle. Triangle is representing the hockey players, rectangle is representing the football players, and circle is representing the girls. And we identify those girls who neither play hockey nor play football. यानी कि girls जो कि rectangle के भी बाहर हैं और triangle के भी बाहर हैं. यानी कि this number should be the answer. 6 will be the answer, option A. Okay. Next, in a certain code, CAB is written as 75. So how will rule be written as? CAB is written as 75. C अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थर्ड पे आता है, A आता है फर्स्ट पे, B आता है सेकंड पे, और कोडिंग आ रहा है 75. इसका 3, 1 और 2 से कैसे 75 आएगा, वी डू नॉट नो. और फिर हमें रोल के लिए आइडेंटिफाई करना है, RULE रूल के लिए, और ऑप्शन है 85, 64, 45 एंड 52. नाउ द स्ट्रेंज थिंग इज कि CAB स्टार्टिंग लेटर्स हैं, इनके लिए अगर कोडिंग 75 आ रहा है तो रूल के लिए ये 85, 64 ऑप्शंस कैसे हो सकते हैं? मतलब ये तो छोटे छोटे ऑप्शन हो रहे हैं. 75 से तो डेफिनेटली छोटे ही आ रहे हैं मोस्टली, और जबकि हमारा वर्ड भी 4 लेटर का हो गया है. तो सम हाउ जो स्टार्टिंग नंबर्स हैं इससे कनेक्टेड तो नहीं लग रहा है. कुछ भी कनेक्शन होगा तो रूल के लिए दैट नंबर शुड बी मच मच हायर, बट दैट इज नॉट देयर. अच्छा, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिवर्स ऑर्डर में देखें, लास्ट से देखें क्या नंबर आ रहा है, तो लास्ट से A का नंबर क्या आएगा? A इज 26. अगर लास्ट से देखेंगे, ठीक है, लास्ट और स्टार्ट का सम करोगे हमेशा 27 आएगा, क्योंकि टोटल 26 लेटर्स होते हैं. तो स्टार्ट से अगर आ रहा है 1, लास्ट से आएगा 26, टोटल सम हमेशा 27 आएगा. सिमिलरली फॉर B, 2 है स्टार्ट से, तो लास्ट से आएगा 25, और C लास्ट से आएगा 24. Now if you sum these three numbers 24, 26 and 25, this total is 75. So yes, this total is matching. तो सेम हमें करना पड़ेगा रूल के लिए भी. E है स्टार्ट से 5 है, तो लास्ट से आएगा 22. L है स्टार्ट से 12 है, लास्ट से आएगा 15. U के बाद में VWXYZ, 5 हटा दो तो 21 है स्टार्ट से, लास्ट से आएगा 6. ठीक है, और फिर R है 18 है स्टार्ट से, तो लास्ट से आएगा 9. तो 9 + 6 + 15 + 22, दिस विल बी 52. So our answer will be 52 only, option D. Is it clear? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. If mouse is written as FTVPN, then रैकेट का कोडिंग क्या होगा? माउस के लिए कोडिंग है FTVPN. तो M के लिए अगर कोडिंग F है, O के लिए T है, U के लिए V है, S के लिए P है, E के लिए N है. E और N के बीच में बहुत गैप है, M और F के बीच में बहुत गैप है. क्या कोडिंग हो सकता है? कैन बी कनेक्टेड. तो माउस के लिए है FTVPN. ओके, तो डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है. अगर हम रिवर्स कर दें ऑर्डर को, यानी कि माउस के लिए लिख दें ESUS
U O M. Then E plus 1 is F, S plus 1 is T, U plus 1 is V. Definitely रिवर्स करके ऑर्डर +1 +1. So all the letters are +1. पहले रिवर्स कर दिया और फिर +1 कर दिया. Similarly for racket, रिवर्स करने पे this will be TEKCAR. So T plus 1 U, E plus 1 F, L D. UFLD, option C is the answer. And then B and S. UFLD BS will be the answer. Option C. Okay. Next question. We have to match two lists और दोनों में कोडिंग ही किया है. Embark, decide, people, single, and then all are 6 letter words. और सेकेंड लिस्ट में हमें उनका कोड्स दिया हुआ है. ओके, तो embark and decide. डिसाइड में लास्ट 3 लेटर्स क्या है? डिसाइड, पीपल, सिंगल, लास्ट लेटर ई है सब में, और सी 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 लास्ट लेटर सेम आ रहा है, यानी कि डेफिनेटली एम्बार्क का जो कोडिंग है दैट शुड बी CKDCPI. प्रॉबेबली, मोस्ट प्रॉबली ऐसा ही है. और ए सेकंड ऑप्शन कितनों में दिया है? सिर्फ फर्स्ट में दिया हुआ ऑप्शन ए में गिवन है. ओके, एम्बार्क के लिए अगर कोडिंग है CKDCPI, डिसाइड के लिए ई से हो गया है सी, डिसाइड के लिए होना चाहिए BCEKBC. एक बार चेक करते हैं. ठीक है, ऑप्शन तो लग रहा है हमें ऑप्शन ए होना चाहिए आंसर, पर चेक कर लेते हैं एम्बार्क के लिए कोडिंग बनेगा क्या? CKDCPI. तो ई से सी तक -2, एम से के अगेन -2, देन बी से डी +2, ए से सी +2, आर से पी -2 और के से आई अगेन -2. तो +2 -2 -2 +2 +2 -2 -2. फर्स्ट 2 को 2 डिक्रीज किया है, फिर 2 इंक्रीज किया है, फिर अगेन 2 डिक्रीज किया है. क्या डिसाइड पे भी यही सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डिसाइड में करेंगे, पहले करेंगे -2, तो -2 से हो जाएगा डी से बी, ई से सी, देन +2, सी से ई, आई से के, देन -2, डी से बी और ई से सी. तो BCEKBC. सो यस, दैट इज करेक्ट. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. यही सेम लॉजिक रहा होगा. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट, इफ परसेंटेज मीन्स इज लेस देन, $sign means is greater than, and hash means is equal to, and it is given that A% B, यानी कि A is less than B, तो A is definitely less than B. C hash D, यानी कि C is equal to D, and C $B, यानी कि C is greater than B. C is greater than B, B is greater than A, यानी कि C, B, A, this is the order, and C is equal to D. Okay, C is greater than B, B is greater than A. That is the order. Which is true? A is greater than B? Definitely not. ये तो इनकरेक्ट है, उल्टा बात कर रहा है. A less than C, so yes, that is correct. C greater than D, C is not greater than D, C is equal to D, so C is also not correct, and D is less than B, that is also not correct. Definitely option B हमारा आंसर है for sure. Next, complete the series 564, 152, 48 and 21, and then next number we have to identify. 564, 152, 48, देन 21, और फिर नेक्स्ट नंबर हमें पता लगाना है क्या होगा. ओके, 564 से 152 में आए हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टाइप का मामला लग रहा है, बिकॉज सडन डिक्रीज आया है, स्टीप डिक्रीज आया है, और फिर 152 से 48 में गए हैं तो भी एक स्टीप डिक्रीज आया है. इजंट इट सो? 564 से 152 में आया, कितना डिक्रीज आया है? यहाँ पे डिक्रीज आया है हमारा 412 का. देन देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 104 का, और फिर डिक्रीज आया हमारा 27 का. तो वी कैन सी दैट 412 देन 104, और 412 कितना हुआ? 4 टाइम्स है ऑलमोस्ट 104 का, और 27 से भी 4 टाइम्स है 104, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है. ठीक है, तो -412 है. 412 का 1/4 करोगे कितना आएगा? दैट विल बी 103. तो -103 -1 हुआ. फिर 104 का 1/4 करोगे तो आएगा 26, तो -26 -1 हुआ. तो नेक्स्ट में हमें 27 का 1/4 करना पड़ेगा, और फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे. प्रॉब्ली दिस इज द लॉजिक. -27/4 -1. ओके, तो क्या नंबर बनेगा? दिस इज -27/4, यानी कि -6.75 -1, सो -7.75, तो -8 आएगा. 13.25 शुड बी द आंसर. ऑप्शन डी, दिस शुड बी द आंसर. ओके, दिस इज वन वे टू लुक एट इट. इसी सेम चीज़ को कैसे देख सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि डिवीजन का कुछ मामला बन रहा है,
है कि नहीं, 562 से 152 तक गए हैं, तो अगर हम डिवाइड बाई 3 करेंगे तो पहुंचेंगे अपन 186 के आसपास, 188 के आसपास, ठीक है, बट अपना नंबर आ रहा है 152। तो अगर डिवाइड बाई 4 करें तो अगर हम 564 हमारा फर्स्ट नंबर है, 564 डिवाइडेड बाई 4 दैट विल बी कितना, दैट विल बी 141। ओके, तो 141 प्लस 11 कर दें, so that will be 152, that is our second number। फिर 152 डिवाइड बाई 4 करें, दिस विल बी 38। 38 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो आएगा 48। देन 48 डिवाइड बाई 4 करें, दैट विल बी 12, और 12 में अगर ऐड करेंगे हम 9 तो दैट विल बी 21। तो क्लियरली हम हर बार डिवाइड बाई 4 कर रहे हैं। 21 डिवाइड बाई 4 करें और फिर कितना ऐड करेंगे, पहले किया 11, फिर किया 10, फिर किया 9, तो अब करेंगे ऐड 8 ऐड करेंगे। 21 बाई 4 इज 5.25 प्लस 8 यानी कि 13.25 विल बी द आंसर। तो किसी भी लॉजिक से देखो दोनों एक ही बातें हैं, बस देखने का तरीका अलग है, बाकी लॉजिक इज सेम। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Out of the 400 students who attended a seminar, 240 opted for the written exam, 200 opted for presentation, and 160 opted for assignment. So there are three things: written exam, presentation, and assignment. Okay, 240 opted for written, 200 opted for presentation, and 160 opted for assignment, and 20 did not opt for given any of the three methods of the test. 200 students had exactly one of the three methods of the test. So how many students opted for exactly two of the three testing methods? Methods हमारे कौन कौन से हैं? एक तो है written exam, 200 have opted for them, 240 have opted for them, that written exam. Second, 240 have opted for the written exam. Then 200 opted for presentations and 160 opted for assignments. और टोटल नंबर है 400 and 20 have opted for nothing. कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, ना असाइनमेंट किया, ना प्रेजेंटेशन किया, ना रिटन एग्जाम किया, पता नहीं क्या कर रहे थे वो, ठीक है। दे वर ओनली स्टूडेंट्स फॉर बीइंग द स्टूडेंट, किया कुछ नहीं उन्होंने। एनीवे, सो 160 ने असाइनमेंट ऑप्ट किया, 20 डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द थ्री, तो 200 ने ऑप्ट किया है एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री मेथड्स, ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री मेथड्स। तो क्या हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली अगर हमारा फर्स्ट सेट है जो कि एग्जैक्टली वन को बिलोंग करता है, सेकंड इज दैट सेट जो कि एग्जैक्टली टू को बिलोंग करता है, यानी कि एग्जैक्टली जिन्होंने एक मेथड के लिए ऑप्ट किया दे बिलोंग टू फर्स्ट सेट, तो डेफिनेटली दिस नंबर इज 200। एग्जैक्टली टू को बिलोंग करते हैं दैट विल सेकंड सेट, और थर्ड सेट होगा जो कि एग्जैक्टली 3 को बिलोंग करते हैं, यानी कि जिन्होंने कि तीनों के तीनों टेस्ट दिए, इन तीनों का सम कितना आएगा, टोटल 400 है। 20 ने कोई भी टेस्ट नहीं दिया है, कोई भी ऑप्ट नहीं किया है, तो 400 माइनस 20 यानी कि 380 ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने कम से कम एक टेस्ट तो जरूर दिया है, एटलीस्ट वन टेस्ट दे हैव गिवन फॉर श्योर, इजंट इट सो, ठीक है। और अगर सारे के सारे को काउंट करें तो हमें पता है कि जो जिन्होंने कि 2 टेस्ट दिए हैं, फॉर एग्जांपल अगर रिटन एग्जाम दिया है और प्रेजेंटेशन दिया है, तो दे विल बी काउंटेड इन रिटन एग्जाम एज वेल एज प्रेजेंटेशन, तो जो भी 2 सेट को बिलोंग करते होंगे दे विल बी काउंटेड 2 टाइम्स, और जो भी 3 सेट को बिलोंग करते होंगे दे विल बी काउंटेड 3 टाइम्स, इजंट इट सो। और टोटल नंबर ये क्या आएगा, जबकि हम रिटन टेस्ट देने वाले, प्रेजेंटेशन देने वाले और असाइनमेंट देने वालों को सबको ऐड कर दें, 240 प्लस 200 प्लस 160 एंड दिस इज टोटली 600। और अगर ये टोटल 600 आ गया है तो क्लियरली अगर हम सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दें तो सेकंड प्लस 2 टाइम्स थर्ड दिस विल बी इक्वल टू 220। ओके, दिस विल बी इक्वल टू 220, इज इट क्लियर? और क्योंकि 200 ने हमारा फर्स्ट दिया है तो क्या सेकंड प्लस थर्ड हम निकाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से बिल्कुल निकाल सकते हैं कि सेकंड प्लस थर्ड विल बी 180, और यहां से हमें मिल जाएगा कि ओनली बिलोंग टू द थर्ड, यानी कि ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन ऑल द 3 टेस्टिंग मेथड्स दे आर इक्वल टू 40, and if this is 40 so this will be equal to 140, okay, this will be equal to 140, is it clear? ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए 140। ओके, तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। आई बिलीव क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में जरूर मेंशन कर देना, एंड इफ यू हैव एनी queries or questions you can always mention in the comment. That's all for this session. Bye bye, take care.